اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی گھڑیوں کے اندر ہمیں اپنی عبادت گاہ میں آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال کی طرف راغب فرمائے اور ان اعمال کو کرنا رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ بڑی ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اس اعمال کی طرف ہماری رغبت ہو اور ان منکرات سے ہم بچ جائیں جس سے رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ اللہ کا نبی جس بات سے ناراض ہو اور خود رب کریم جس اعمال سے ناراض ہو، ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے، ان منکرات سے بچنا چاہیے۔ بیوی اپنے شوہر کی ناراضگی سے ڈرتی ہے، وہ کام کرتی ہے جس سے اس کا شوہر ناراض نہ ہو۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور اس کے سامنے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں، میں اس کی رضامندی والے کام کروں، اس کو خوش کرنے والے کام کروں، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اگر میرا شوہر مجھ سے راضی ہوگا تو وہ مجھے راحت دے گا، مجھے سکون دے گا اور میرے لیے سعادت مندی کی بھی بات ہوگی اور میرے لیے باعث اجر بھی ہوگا۔ تو اس کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نظروں کے سامنے اچھے کام کر کر اپنے شوہر کو راضی کرے۔ اسی طرح کوئی مزدور ہے تو مزدوری وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میرے کام سے میرا مالک راضی ہو، میرا ٹھیکیدار مجھ سے راضی ہو، میں اس کی نظروں کے سامنے اچھا نظر آؤں تاکہ وہ مجھ کو اچھا بدلہ دے، مجھ کو وقت پر پیسہ دے، مجھ کو پیسہ دیتے وقت وہ آناکانی نہ کرے، وہ ٹال مٹول نہ کرے، کیونکہ میں اس کی نظروں کے سامنے اچھا رہوں گا تو مجھے پیسہ دے گا۔ اسی طرح ایک اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باپ کی نظروں کے سامنے صحیح رہوں۔ اب یہ انسان ظاہری شکل و شباہت کو دیکھتے ہوئے اپنے ظاہری اعمال کو سنوارتا ہے، اس لیے سنوارتا ہے کہ اس کے سامنے جزا، اس کے سامنے بدلہ، اس کے سامنے اس کا نتیجہ ظاہر ہونے والا ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کا نتیجہ معلوم ہے، غلام کو کام کرنے والے مزدور کو اپنے آقا کا نتیجہ معلوم ہے، انسان کو اپنے کام کا نتیجہ معلوم ہے، وہ اپنے کام کو اپنے بڑے کے سامنے تجریداً یہ دیکھتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بڑا پروفیسر آ جائے، ملک کا وزیر اعظم آ جائے، گاؤں کا پردھان آ جائے، پٹیل آ جائے، چودھری آ جائے، میری اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے میرے گھر پر چائے پیے، میرے گھر پر بیٹھے، میرے گھر کا رخ کرے، ہمارے سامنے اس کی تعظیم ہو، اور اگر وہ کسی کے سر پر ہاتھ پھیر دے تو گاؤں میں وہ معزز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اس کا بدلہ ہے، اس کے سامنے اس کی جزا ہے۔ میں اور آپ کی زندگی کے اندر یہ اصول ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر معزز بن جاؤں، میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکرم بن جاؤں، میں ہر اس کام سے بچ جاؤں کہ جس سے میرا رب ناراض ہو۔ چونکہ ہمیں ان ظاہری اشکار کے اندر اس بات کا تو یقین ہے کہ اگر میں کسی بڑے کی مخالفت کروں گا وہ مجھے دھتکار دے گا، میں کسی بڑے کو سلام نہیں کروں گا وہ میرا عطیہ روک دے گا۔ یہ انسان کی ظاہری شکل و شباہت کو دیکھ کر وہ اپنے عروج پر آنے والے لوگوں کی کم نظری کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا نچلا طبقہ ان کی تعظیم کرتا ہے۔ تعظیم کیوں کر رہا ہے؟ ان کے سامنے اس کا نتیجہ ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا شیڈول اس طرح ہو کہ میں اپنی زندگی کے اندر کوئی حرام کام نہ کروں، میں اپنی زندگی کے اندر کبھی چوری نہ کروں، کبھی جھوٹ نہ بولوں، کبھی غیبت نہ کروں، کیونکہ میرے اور آپ ہم جس کی نظر میں ہیں، آج اگر کہیں دیوار پر یہ لکھا ہو کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہو تو میری اور آپ کی وہاں سوچ بدل جاتی ہے۔ ہم جہاں ATM کے اندر جاتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر کے اندر ہے، میری وہاں گفتگو بدل جاتی ہے، وہاں بیٹھنا اٹھنا ہمارا بدل جاتا ہے، ہماری سوچ وہاں بدل جاتی ہے، چونکہ وہاں لکھا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہو۔ کیوں کہ کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، ہماری نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ انسان کے سامنے اس کی ظاہری اعمال کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ اب میرے اور آپ کے ایمان کا نتیجہ یہ ہے، اتنا کمزور ایمان ہو گیا ہے، اپنی دنیاوی آلائش کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی لہو و لعب کے اندر آ کر، جوانی کی بھرمستی کے اندر میرے اور آپ نے اپنے رب سے اتنا گہرا جو کانٹیکٹ تھا اس کو اتنا کمزور کر لیا، اتنا کمزور کر لیا کہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہے، وہ چوری کر رہا ہے اور مجلسوں کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آج تو میں نے فلاں جگہ چوری کر لی ہے، آج میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا ہے، آج میں نے فلاں لڑکی کو آئی لو یو کہہ دیا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دماغ کے اندر سے، اس کے دل کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ کیوں نکل چکا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو دنیاوی ظاہری آلائش میں اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں لوگوں کی نظروں کے اندر ہوں، لیکن جب وہ لوگوں کی نظروں سے کٹ جاتا ہے تو ایمانی مضبوط اتنا نہیں ہے، ایمانی جذبہ اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ کہہ سکے کہ میرے اللہ مجھ
को देख रहा है। मैं झूठ बोलूंगा कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी, मैं चोरी करूंगा कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी, मैं गीबत करूंगा मेरी कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। किसी बेटी पर मैं नजर दौड़ाऊंगा, कल मेरी बेटी पर कोई नजर दौड़ाएगा। आज मैं किसी की बेटी को गलत निगाह से देखूंगा, कल कोई मेरी बेटी को गलत निगाह से देखेगा। आज अगर कोई किसी की बेटी से जिना कर रहा है, मौत से पहले पहले कर्जा दुनिया के अंदर उसको ये चुकाना होगा। अब इंसान के अंदर ये तस्वुरात की दुनिया में और उसके यकीन होने की न होने की बुनियाद पर वो चोरी भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, शराब नोशी भी कर रहा है, अय्याशी भी कर रहा है, हराम को हराम नहीं समझ रहा है, माँ को माँ नहीं समझ रहा है, बाप को बाप नहीं समझ रहा है, बाप से धड़ल्ले से बोल रहा है, माँ को गाली दे रहा है, बड़े भाई का एहतराम नहीं है, बहन का तक़द्दुस नहीं है, मस्जिदों का एहतराम नहीं है। ये क्यों आया? इसलिए कि उसने ज़ाहिर दुनिया के अंदर देखा है बातिनी कैफियत इतनी खराब हो चुकी है, दिल की दुनिया का निज़ाम इतना मखदूश हो चुका है, इतना गदला हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है। अब उसको सच्चे और बुरे की पहचान नहीं है और उसका नतीजा ये है कि आज हम तनज़्ज़ुली के इस हालत पर आ गए कि हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? आप लोग तो ऐसे चेहरे बना के बैठे हो कि घर से जबरदस्ती भगाया कि जाओ जुमा तो पढ़ना आप लोगों पर फर्ज है, ऐसे तो नहीं आए हो ना। हसासियत के साथ बैठो, बात को सुनो और इस नियत से सुनो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाई पीछे वाले भी आमीन कह सकते हो, आमीन कहो। आप बात समझ में आए ना? हाँ, बहुत शांति से तुम में अकेला चिल्लाने से कोई फायदा होगा नहीं। आप इस नियत माइक भी नहीं है, पिछले साल भी शायद मैं आया था गलीबन, तो पिछले साल भी माइक नहीं था। अभी एक जगह बयान करने के लिए गया था पिछले हफ्ते तो इस मस्जिद के अंदर बयान करने के लिए गया था, तो मस्जिद वालों ने जो माइक चालू किया तो माइक ऊपर वाली चीज़ चालू कर दी, ठीक है। अब एक आता है माइक बंद करता है कि भाई बाहर का माइक चालू है, दूसरी बटन चालू करता है, फिर वापस वही माइक चालू हो जाता है। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ तो उसको मेरे माइक को निकाल के रख दिया। मैंने कहा भाई मस्जिद से इतना ताल्लुक तो होना चाहिए कि आज की अंधेरी रात के अंदर अगर पंखे की बटन चालू करे तो पंखा ही चालू हो, लाइट चालू ना हो। ये हालत क्यों आई कि हमारा मस्जिदों से राब्ते बहुत कम हो चुके हैं, मस्जिदों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को दीन से नहीं जोड़ा। जितना हम अपने बच्चों का दीन से रिश्ता और गहरा मजबूत ताल्लुक कराएंगे, ये हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन खेती है, हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन कीमती सरमाया और असासा है। अगर ये ज़ाय कर दिया तो फिर हम इस बात की किसी से अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए काम आएगा। आज हम अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजेंगे, मदरसे नहीं भेजेंगे, जिस तरह मुझे सूरह फातिहा नहीं आती है, हमें जनाजे की दुआ नहीं आती है, ये बच्चे हमारी तरह इसी तरह बड़े हो गए, जनाजा पढ़ा रहेगा तो किसी को दूसरे को पूछेगा कि जनाजे की नमाज बाकी कैसे पढ़ूं। तो इस हालात से बचाने के लिए अपने बच्चों को इतनी तालीम जरूर दो, इतनी तालीम जरूर दो, वो हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, वो अपनी जिंदगी को खुद रब तबारक व तआला की मर्जियात के मुताबिक गुजारे। हमारे यहाँ माहौल ये बन चुका है, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक बेवाकियों के मुल्क पर खेल रहे कूद रहे, उन्हें वो बीड़ी पी रहा है, छोटा बच्चा उसको बीड़ी दे दी, सिगरेट दे दी, उसको जिंदगी के उन मराहिल के अंदर जब उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उनको सिखाना चाहिए। उन बच्चों की मोहब्बत के अंदर हम ये कहते हैं अभी बच्चा है, अभी मासूम है, उसकी मोहब्बत के अंदर गुरूर हम इतना कर देते हैं, बच्चे को मस्जिद भेजने से हमें आर होती है। बच्चा सिगरेट पीता है, वो किसी गांव में किसी को मार देता है तो खुशी होती है, हमारा छोटा बच्चा है, फुला को गाली दे रहा है, फुला को ये कह रहा है। ये हमारे यहाँ दीनी शुऊर नहीं होने की बुनियाद पर हमें ये खुशी होती है कि बच्चा है देखो बीड़ी पी रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है और उसको प्रोमोट किया जा क्यों कि हमारे अंदर दीनी एहसास नहीं है, हमारे अंदर दीनी जज्बा नहीं है। छोटे बच्चे को अगर आज आप गुटखा और पाउच खिलाओगे, अगर आज उसको काम पर लगा दोगे, उसको जब दीनी तालीम नहीं दी, वो तुम्हारी बात भला मानेगा? तुम खांसोगे उन्हें तकलीफ होगी, तुम उन्हें किसी काम का हुक्म करोगे ना तकलीफ होगी। क्यों? कि उनके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का कोई मेयार है ही नहीं। भाई कहाँ बच्चे समझेंगे? जब उनके जहन के अंदर अच्छी तालीम देंगे, जब उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा सिखाएंगे, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम आशना करेंगे, तो हमारे बच्चे हमारी खेती होकर तैयार होगी, वो हमारे लिए बेहतरीन अमाल और हमारे लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा होगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की मोहब्बत के अंदर अगर हम उनको मस्जिदों के हवाले नहीं करेंगे, मकतब के हवाले नहीं करेंगे, मदरसों के हवाले नहीं करेंगे, ये बच्चे ज़ाये हो जाएंगे। याद रखिए, मेरी बात को लिख लीजिए, ये बच्चे ज़ाये हो जाएंगे, ये बच्चे बात नहीं मानेंगे, बाप को बाप नहीं समझेंगे, माँ को माँ नहीं समझेंगे, गाँव के बड़े को बड़ा नहीं समझेंगे। क्यों? कि हमने उनके अंदर जो तमीज करने का, जो फर्क करने का जो मेयार था, जिस तरह उसको तोला जा सकता था, हमने उसको सांचे के अंदर ढाला ही नहीं है। फिर हम किसी मौलवी से तावीज ले कि बच्चा गाली दे रहा है, बच्चा ये कर रहा है, बच्चे के ऊपर बीवी आती है कि भाई शोहर को ताबे करने का तावीज दे, शोहर आता है बीवी को ताबे करने का। क्यों भाई? जरूरत क्यों पड़ी ताबे करने की? इसलिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे न हुए तो फिर एक दूसरे को ताबे करने के तावीज़ात ढूंढते रहते हैं। बातें समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो भाइयों, हमें इस बात की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ
शादी ब्याह का मौका है और माहौल है। अब हमें इस बात पर, इस निहत पर हमें इस बात को आज आप इस मदरसे के अंदर इस बात का तहिया कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम हद इम्कान इस बात की कोशिश करेंगे कि हम हमारे मामलात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। कभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे इलाके के अंदर, हमारे घरों के अंदर कि कुरान मजीद रखा हुआ हो और कुरान करीम के ऊपर गर्द चढ़ा हुआ हो, धूल चढ़ गई हो, हमारे घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान इसलिए नाजिल किया था कि तुम रमजान उसको पढ़ा करो? भाई जब हमारे घरों के अंदर ये हालात आएंगे कि बेटा सुबह 8 बजे उठ रहा है, बहू 6 बजे नहीं उठने वाली थी, वो खुद 8 बजे उठ रही है, बच्चा सो रहा है, और घर के अंदर सुबह का निजाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उन तालीमात को निकाल के बाहर फेंक दिया, और हमारे घरों में उठने वाले बच्चे जो जिनको 4 बजे उठना था वो 8 बजे उठ रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, और फिर कहते हैं बरकत नहीं है। जब मेरा रब बरकतों का दरवाजा खोल देता है और फरिश्ते उठकर ऐलान करते हैं, जब मेरा रब आसमान से जमीन दुनिया पर आकर कहता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको मांगने वाले को अता कर दूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला, उसके सवाल को मैं अता कर दूं, है कोई मुझसे मदद मांगने वाला, मैं उसकी मदद पूरी कर दूं। अल्लाह खुद जमीन पर आकर कहता है मेरे भाइयों कि मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उस वक्त मेरी कौम का नौजवान सोता है, फिर वो दर दर के सजदे करता है, वो दर दर पे जाकर अपनी पेशानी को झुकाता है, जो पेशानी मेरे अल्लाह के सामने झुकनी थी, जो पेशानी मेरे रब के सामने झुकनी थी। मेरे कायनात के पैगंबर ने कहा अगर मैं कहीं ये पेशानी झुकाने का हुक्म देता तो मैं बीवी को कहता वो शौहर के सामने झुकाए पेशानी को, लेकिन ये पेशानी अल्लाह के सामने झुकती है, इसे किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जब ये अल्लाह के सामने झुकेगी तो दुनिया वालों के सामने कभी हम नहीं झुक सकते हैं। तो इस बात का तहिया करिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, हमारा काम सिर्फ नियत करना है, हमारा काम सिर्फ अल्लाह से कहना है कि अल्लाह दिलों की दुनिया इतनी बिगड़ चुकी है कि सुबह तौबा करते हैं, शाम टूट जाती है, शाम तौबा करते हैं, सुबह टूट जाती है, रात को अल्लाह तेरी नाफरमानी करते हुए सोते हैं, मोबाइल हाथ में है, गंदी फिल्में देख रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, और उसी हालत में नींद लग जाती है। अल्लाह तेरा करम तो देख, तू उठा देता है। अल्लाह फिर उठते हैं, पहले मोबाइल देखते हैं, तेरी नाफरमानी करते हैं, तेरी बदअमली की और तेरी नाफरमानी करते हुए जिंदगी की इब्तिदा करते हैं, सुबह की इब्तिदा करते हैं। अल्लाह तू फिर भी रिज़्क़ देता है, तेरा नाफरमान बंदे से तू इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह हमारी दिल की दुनिया इतनी बिगड़ चुकी है, कालक इतनी अंदर आ चुकी है, मखदूस दिल इतना हो चुका है कि तेरी नाफरमानी करने के बाद भी दिल के अंदर इस बात की आमादगी नहीं होती है कि मैं अपने अल्लाह को राजी कर लूं, मैं अपने नबी को राजी कर लूं, मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी यहाँ मूड़ता हूँ, मेरे नबी को तकलीफ होती है, चोरी यहाँ करता हूँ, मदीने वाले को तकलीफ होती है, मैं ताइफ में इसलिए गया था कि तुम मेरी सुन्नतों को छोड़ दो, मैंने निकाह को इसलिए आसान कहा था कि तुम निकाहों के अंदर डीजे और बाजे बजाओ, तुम रंडियों को नचाओ और मेरे नबी की तालीम को छोड़ दो। आज मेरे भाइयों, आज हमारे अलमिया ये है कि अगर मैं यहाँ बात करके जाऊँ, अगर चोरी करने पर बात करूँ, चोरी की वहीदें सुनाऊं, जो चोर होगा उसे बड़ी तकलीफ होगी, जो हराम खोरी करता है उसे बड़ी तकलीफ होती है, शराब वाले के पास जाओ, उसे शराब की हराम, उसको शराब हराम होने पर उसको वहीदें सुनाओ, उसे तकलीफ होती है। बताओ मेरे कायनात के पैगंबर ने तुम्हें कौन सी तालीम दी थी, रोजाना दी थी, और जिसने तुम्हें छोड़कर ये समझा कि अंग्रेज के कल्चर में मेरे लिए कामयाबी है, अंग्रेज की तहजीब में मेरे लिए कामयाबी है, यूरोप के कल्चर में मेरे लिए कामयाबी है। खुदा की कसम, यूरोप के कल्चर में अगर कामयाबी होती तो आज मस्जिद के बच्चों को जमीन पर रहते हुए 2 साल होते हुए कत्ल होते हुए मासूम बच्चों को ना होता। अगर उन लोगों के अंदर इंसानियत होती, मेरी माँ वहां न तड़पती, मेरी बहनें वहां न तड़पती, उनको दरिंदगी से न कत्ल किया जाता। उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, और जिन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, मैं और आप उनके कल्चर को ये समझते हैं कि हमारे लिए ये फॉलो करके हम उनको अच्छा लगते हैं। मेरे नौजवान ने यहाँ, उन लोगों ने वहां से पेन फाड़ी, मेरे नौजवान ने पेन फाड़ने को ये समझ लिया ये अंग्रेज का कल्चर है, ये फैशन है, उन्होंने खंजीर की तरह बाल बनाए, मेरे नौजवान ने बाल बना लिए, शायद मैं इसमें अच्छा लगूं, उसने अपने यहाँ चेहरे की दाढ़ी उतार ली, मेरे नौजवान ने समझा इसमें बड़ी अच्छाई है, इसमें मेरा चेहरा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इसके अंदर चेहराई के अंदर अच्छी होती तो मेरा रब मेरे नबी को कभी दाढ़ी ना देता, इतने अंबियाओं ने कभी दाढ़ी ना रखी होती। तो मेरे भाइयों, दुनिया इस वक्त बहुत खराब माहौल पर है, दुनिया का मोड़ इस वक्त बदला हुआ है, दुनिया करवट लेने वाली है, जमाना करवट ले रहा है। मेरे नबी का फरमान याद आता है मुझे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युस्बिहु रजुलु मुस्लिमन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन, युस्बिहु रजुलु मुस्लिमन कि भाई मुसलमान सुबह को मुमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। उसकी जुबान उसको कभी मुमिन बनाएगी, कभी काफिर बनाएगी। मैं और आप ऐसे हालात के ऊपर आ चुके हैं कि आज मुझसे मेरी मस्जिद छीनने के लिए बातें कर ली गई है, हमारे खिलाफ वो कानून नाफिज कर दिए गए हैं कि आज हम यहाँ सुकून से बैठे हैं। मालूम नहीं 10 साल बाद हमारे लिए हमारी मस्जिदें रहे या ना रहे, मालूम
मालूम नहीं आने वाली नस्लों को अपने लिए जमीन पर पेशानी रगड़ने के लिए कोई जगह मुयस्सर हो न हो। हमसे हमारे वक्त की जमीनें छीन ली। आज जितने मदारिस मकातिब खानकाह मदारिस हैं सारे वक्त की जमीनों पर बने हुए हैं। आज कानून ये लाकर नाफिज कर दिया गया है कि वक्त की सारी जमीन हुकूमत ने ले ली है। आज हमारे यहाँ माहौल अच्छा है, 10 साल बाद जमाना जब करवट उठेगा, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ हालात कुछ नहीं कह सकते हैं। आज हालात तुम यहाँ देख रहे हो, आज हालात हम यहाँ हैं। 10 साल के बाद हालात की चक्की इस कदर आ सकती है कि हमें रगड़ने के लिए, पेशानी के लिए, सजदे के लिए जमीन मुयस्सर न हो। इसलिए उससे पहले अपने अल्लाह को मना ले और अपने रूठे हुए रब को मना ले और अपने रब तबारक व तआला से अपने आप के आर्जी को पेश कर दे कि अल्लाह हम कमजोर हैं, हम अपने मामलात को, अपने मुकद्दमात को तेरे सुपुर्द करके तेरे हवाले करते हैं। आदिल भी तू है, हाकिम भी तू है, काजी भी तू है, फैसल भी तू है। अल्लाह हम तो तेरे सामने वो मुजरिम हैं कि हमारे गुनाह की इतनी नहुसत है कि हमारे लिए अगर तू रिज़्क़ भी बंद कर दे तो हम तुझसे ये नहीं कह सकते कि अल्लाह तूने रिज़्क़ क्यों बंद किया। क्यों? कि जिंदगी के 40 साल गुजर गए, जिंदगी के 60 साल गुजर गए, कोई इबादत पे और आप ऐसी पेश नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह तो इस इबादत के बदले मुझे जन्नत दे सकता है। कोई इबादत मैंने अभी तक ऐसी नहीं की कि मेरे अल्लाह से ये कह सकते हैं कि अल्लाह मैंने ये इबादत की है तो इसके बदले मुझे जन्नत दे दे, इसके बदले तू मेरी नजात कर दे। मेरे और आपके अमाल तो ऐसे है कि जमीन कहती है अल्लाह ये दंदनाता हुआ चल रहा है मेरी जमीन पर, तू हुक्म दे इसको मैं जमीन में निकल लूं। क्यों? कि सुबह गुनाह करते हैं, शाम गुनाह करते हैं, सोच गंदी, दिमाग गंदा, दिल गंदा, ख्यालात गंदे, और ऐसी गंदी दुनिया के अंदर, ऐसी गंदे माहौल के अंदर मेरे भाइयों मैं और आप अल्लाह से ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला तू हमें जन्नत दे सकता है। नहीं भाइयों, गुनाह इतने हैं लेकिन मेरा रब कुरान करीम में मुझे और आपको ढारस देता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए तो कैद खाना है, मेरे और आपके लिए तो दुनिया के अंदर मसाइब भी आएंगे, परेशानी भी आएगी, मुश्किलात भी आएगी। तो मेरे भाइयों ऐसी गलीस और बदतरीन दुनिया से अंदर हम जी रहे हैं और ऐसे हालात के अंदर जी रहे हैं। मैं आप हज़रात को ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि अपनी जिंदगी को बेदारी के साथ गुजारिए, एहसास के साथ गुजारिए, एहसास का मादा पैदा कीजिए, अपने दिलों की दुनिया को बनाने की कोशिश कीजिए, मसाजिद से रवाबित कायम कीजिए, उलमा से रवाबित कायम कीजिए। 40 साल 50 साल जिंदगी के गुजार लिए हैं, मुझे आप कोई मजमे से खड़े होकर बताओ कि मैंने 50 साल गुजारे हैं, मैंने कोई अच्छा काम कर लिया हो, या दुनिया बनाई हो या आखिरत बनाई हो। हालात ऐसे हैं ना दुनिया बना सके ना आखिरत बना सके, और जिंदगी का कीमती सरमाया मेरे और आपने अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजारा है। तो आज सारे इस बात का अज़्म करिए कि इंशाअल्लाह आइंदा हम अपनी जिंदगी को अपने रब के मुआफिक गुजारने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। पीछे तक आवाज जा रही है भाई? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस बात से, गुनाहों की आलूदगी से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरे भाइयों मांगे अल्लाह से, मस्जिदों के अंदर आ जाएं, नमाज से 10 मिनट पहले आ जाएं, अजान से थोड़ी देर पहले आ जाएं और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जिंदगी तो कब खत्म होना है, कब चलते चलते इंसान की मौत आ जाए नहीं कह सकते हैं। अभी मैं यहाँ आ रहा था आपके यहाँ, एक गाड़ी चलाने वाला दुकान पे मैं खड़ा था किसी काम के लिए, वो गाड़ी चलाते चलाते अपनी औरत को लेकर खुद ही गिर गया, उसके हाथ गलती से ब्रेक लग गया, उसकी औरत को काफी लेकर पीपल पोटा गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिंदगी के हम ये पानी का बुलबुला है, कहाँ कब हवा का झोंका आया, कब जिंदगी की आखिरी सांस पूरी हो जाए, कब कहाँ पूरी हो जाए। मैं मिंबर से उतरूँ ना उतरूँ मुझे इसका यकीन नहीं है, मैं अपने घर जाऊँ या ना जाऊँ मुझे यकीन नहीं है। खैर कुन्ने फुना गनीमत शुमार उम्र जा पेशतर के भांग बलायत फला नमाज। ए भाई अपने आप में अपनी जिंदगी के अंदर कोई अमल ऐसा कर ले उस वक्त से पहले कि मस्जिद के किसी मीनारे से ऐलान आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फुला का इंतकाल हो गया जिसकी नमाज जनाजा फुला वक्त है। ऐसा वक्त तो आने वाला है ना, आप में से है कोई ऐसा वक्त जो कह सकता है भाई मेरे यहाँ ऐसा ऐलान नहीं होगा या मैं नहीं मरूंगा? नहीं नहीं नहीं, मरना मुझे भी है आपको भी है। जवानी पे ये ना समझे कि जवानी है, मौत बुढ़ापे में आएगी। अभी इस वक्त के हालात में तो सबसे ज्यादा मौत जवानों की सुनने को मिल रही है। हालात इतने बदतरीन हो चुके हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि तुम पर एक जमाना ऐसा आएगा कि कसरत से बिजलियां गिरेंगी। एक शख्स मुझे रात को कह रहा था कि पूरा जगह बिजली गिरी है, 5 लोग मर गए गलीबन उससे ज्यादा। मैंने उस वक्त उनको हदीस सुनाई, किताबुल फितन की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग पूछेंगे कि फुला कल शख्स बिजली के अंदर कितने लोग मरे। जो क़यामत की अलामत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाई, जो वईद आपने बताई वो पूरी हो रही है, वो पेशन गोइयां पूरी हो रही है। तो मेरे भाइयों मैं और आप उन पेशन गोइयों को पूरे करने वाले क्यों बने? माँ बाप को गाली देने वाले क़यामत से पहले होंगे, लेकिन मेरे गाँव में ऐसा कौन है जो मैं अपने माँ बाप को गाली देने वाला हो? मैं और आप क्यों बन जाए? मैं और आप अल्लाह से तौबा करें। क़यामत से पहले पहले जिना आम होगा, लेकिन उस जिना को आम करने वाले मैं और आप क्यों बन जाए? मैं और आपके पास तो इतना इल्म है, अल्लाह ने अकल दी है, अकल को सही इस्तेमाल करो। इसको गलत इस्तेमाल करोगे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता है, जुबान लड़खड़ा जाती है, मौत का झटका आता है, इंसान को सीने में तकलीफ होती है, आँख
आंखें पतरा जाती है, बेटे को बुला रहा है, बच्चे को बुला रहा है, लेकिन कलमा नसीब नहीं हो रहा है। सारी जिंदगी तो झूठ बोल कर गुजारा है और गाने में सुनते हुए जिंदगी गुजारी है। सोचता यह है सजदे में मौत आ जाए। नौजवान तू सजदे की मौत चाहता है, आज तौबा कर ले, अल्लाह से मांगता रहे, तुझे सजदे की भी मौत अता होगी। लेकिन तू ये चाहे मैं गानों की मजलिस में बैठूं, मैं औरतों के साथ नाच गाने में मशगूल रहूं और मुझे सजदे में मौत आ जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। मेरे अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला जब पकड़ता है इतना खतरनाक पकड़ता है, अमीर को गरीब बना देता है और गरीब को अमीर बना देता है, बादशाहों को फकीर बना देता है, जवान को वो बूढ़ा भी कर देता है, बूढ़े को कब्र तक भी पहुंचा देता है, वो बच्चे को जवान भी करता है, जवान से बूढ़ा भी करता है। लेकिन इंसान की हालत क्या है? पैदा होता है तब भी पलंग पर होता है और जब बूढ़ा होता है तब भी पलंग पर होता है। पैदा होता है, माँ चलाती है, माँ की मोहब्बत है, बूढ़ा हो जाता है, औलाद नाफरमान है, खुदा की कसम औलाद ये कहती है कब मरेगा ये बूढ़ा, उसकी खांसी उसको पसंद नहीं है, उसका चलना फिरना पसंद नहीं है, बिस्तर पर तो आना है या तो कब्र घड़ी प्यारी है। वो बूढ़ा ये सोचता है मुझे मौत आ जाए, मिलने वाले जाते हैं। और आज तो सबसे बड़ा आलमिया मैं बता दूं, मैं जब इस बात को सोचता हूँ खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज लोग किसी की इयादत करने कब जाते हैं? गांव का अमीर हो, गांव का प्रधान हो या अगर जिसके पास पैसे हो, वो बीमार हो जाए, लोग अस्पतालों में उसकी लाइनें लगा देते हैं, उसके पास मिलने जा रहे हैं, उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं। लेकिन गांव का गरीब है, वो बीमार है, लोग उसका नहीं पूछते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हदीस कुदसी है, कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला पूछेगा कि बंदे में बीमार था, तूने मेरी भी इयादत के लिए तू क्यों नहीं आया? तो बंदा अल्लाह से कहेगा अल्लाह आप भी वाला बीमार हो सकते हैं। अल्लाह ताला कहेंगे कि मेरा अपना बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत के लिए जाता, अगर तू उसको मिलने के लिए जाता तो तू मुझे वहां पाता, तू वहां उसकी इयादत के लिए नहीं गया, तो मैं तुझे वहां नहीं मिला। तू अगर किसी बीमार के पास जाता तो मैं बीमार के पास हुआ करता हूँ। मेरा अल्लाह कमजोरों के पास होता है, टूटे हुए दिलों के पास होता है, मरीजों के पास होता है। आज गांव के अंदर अगर कोई अमीर है वो बीमार हो जाए, लोग उसके घर का दरवाजा नहीं छोड़ते हैं। कोई गरीब बीमार हो जाए, लोग उसको नहीं पूछते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ किसी की तफरीक नहीं है। गाँव का इंसान वो भी इंसान है, अमीर वो भी इंसान है। किसी की तफरीक न क्या करो, अल्लाह के बंदों को नवाजा करो। अल्लाह ने पैसे दिए हैं, गरीबों की मदद क्या करो। बीमारों के पास जब जाओ तो उसकी हालत को देखो, उसकी पैसों की जरूरत हो, उसको मुट्ठी में पैसे दे आओ। अगर वो इस हालत में है कि अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो, हम लोग जाते हैं मोहल्ले से बीमार की इयादत के लिए जाते हैं, इयादत करके आ जाते हैं। भाइयों, हमारा हक बनता है अगर वो गरीब है उसके पास आप फल फ्रूट ले जाओ, कोई सी चीज ले जाओ जिससे वो खुश हो। जब वो आपके लिए दुआ करेगा, रब तबारक व तआला वो दुआएं कबूल करता है। तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह, खुराफात से बचेंगे ना इंशाअल्लाह, बिदअत से बचेंगे ना इंशाअल्लाह। बिदअत से बचेंगे इंशाअल्लाह तो धीरे होगा, इसलिए बहुत एक घंटे से इंशाअल्लाह कह रहे हैं तो वो इंशाअल्लाह नहीं भले नवाज से कहो इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अब उस सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को आप देख ले, आप अपनी गिरबान के अंदर। मैं नहीं कहूंगा ये मत करो ये मत करो, इसलिए कि बहुत सारे काम नहीं करने के, कब तक कहूंगा। आप खुद देखो कि कौन सा काम सुन्नत के मुताबिक है, कौन से काम से मेरा रब राजी होगा, कौन से काम से मेरा रब नाराज होगा। हर उस काम से रुक जाओ जिससे मेरा रब नाराज हो, रुकेंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें कोई किसी की जरूरत नहीं है या मौलाना ने हमसे तो जबरदस्ती इंशाअल्लाह कहलवा लिया और मौलाना ने तो जबरदस्ती हमसे तौबा करवा ली, अब उसको बुलाएंगे नहीं यार, वो तो मस्जिद में झूठ बुलवाता है। अरे अल्लाह के बंदो, इतनी छोटी सोच है हमारी, हम अल्लाह के घर में अल्लाह से तौबा भी नहीं कर सकते। मेरा नबी तो दिन में 70-70 बार इस्तिग़फ़ार करता था। वो किसके लिए ताइफ में रोया? वो किसके लिए रोया? मेरे और आपके लिए रोया। मैं और आप इतनी छोटी सोच रखते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहने वालों ने मुझसे भी कहा। तो इसलिए मुझे इस बात का एहसास है, जज्बात का मैं आप लोगों का ख्याल रखता हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों से मोहब्बत करते हैं। बंदा सुबह तौबा करता है, वो तौबा करता रहे तोड़ता रहे, तौबा करता रहे तोड़ता रहे। तौबा करके गुनाह हो जाना ये नहीं, गुनाह पर इसरार करना ये नहीं। एक बार झूठ बोला, एक बार चोरी, उस पर इसे नहीं। चोरी हो गई, तौबा कर लिया, अल्लाह नहीं करूंगा। फिर हो गई, फिर चोरी, लेकिन तौबा ही ना करे और चोरी पर चोरी, झूठ पर झूठ, जिना पर जिना, शराब पर शराब, डाके पर डाके, ये बुरा है। शरीयत में गुनाह हो जाना। हज़रत फरिश्तों ने एतराज किया था कि अल्लाह आप जमीन पर ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जो जमीन पर झगड़े करेगी, फसाद मचाएगी, खून खराबा करेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को देखो, फरिश्तों के अंदर शहवात नहीं है, फरिश्तों के अंदर जज्बात नहीं है। अगर इंसान अपनी शहवात पर कंट्रोल करते हुए गुनाहों से बचते हुए अगर वो कोई अमाल करता है तो वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। इसलिए कि फरिश्ते सदका देते नहीं है, फरिश्ते ज़कात देते नहीं है, फरिश्ते रोजे रखते नहीं है, फरिश्तों के यहाँ बीवी बच्चों का झगड़ा नहीं है, लफड़ा नहीं है जो हमारे गले पड़ा हुआ है, वो उनके यहाँ नहीं है। तो हम इन तमाम झमेलों को देखते हुए अगर अल्लाह की इबादत करेंगे एक भी, तो रब तबारक व तआला के यहाँ वो बहुत मकबूल है। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे मुंतज़िर फरदा है, तो फिर आफात वलियात के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी कोई बात आप हज़रात को बुरी लगी हो तो मैं आप हज़रात से माज़रत खा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया, फिर मुलाकात होगी।